सर, मैं निवेदन कर रहा हूँ सर। सर आप अपना टॉपिक बताएंगे प्लीज। पहले अपना नाम बताएंगे। Okay, sir. I shall और proceed. फिर टॉपिक बताएंगे और उसके बाद में 2 मिनट तक की बात करनी है। हाँ बिल्कुल है ना? जो बात है ऐसा नहीं है सर, वो जो उस पर चलेगा, डिस्प्ले चलेगा और हम एक वन बाय वन पढ़ेंगे। अपनी बात को व्यावहारिक तौर पर कह देना है। थैंक यू। Okay, thank you, sir. Thank you so much. Good afternoon, distinguished gatherings, convener of the program, judges, organizing secretary Dr. Madan Mohan Varsne sir, though principal sir is not present here. I would like to express my gratitude, deep gratitude to them that they have invited us to deliver their speech on in this international seminar on global partnership, India's collaborative initiatives for economics and social growth. Despite the fact that we were not hardly ready to attend the seminar, but the topic actually gave me an impetus to participate and to present the paper in this seminar. My topic is Odds for Unity in Diversity in the Select Indian and Nepali Poets. Odds for Unity in Diversity in the select poems of Indian and Nepali poets. This topic, though I am a student from the Department of English, Srinivas Prasad Yadav, Faculty of Arts, Banaras University, and I am a student of research scholar of literary bent of mind. So I chose a topic that is very much compatible to this international seminar, and there were different themes in the brochure as I show, and there I found unity in diversity, and I chose that topic that is compatible to my studies. As you know that this economic and social growth, that is only possible where there is proper collaborative in global partnership. In a world of globalization, this global partnership is only possible when there is integration and mutual understanding, and as I have seen that there are poets from Nepal and India who from their literary works have exposed how unity in diversity is important in order to enhance the actual advancement or social development. For example, from Nepal, poets like Vishnu Sarai is a very great poet from Nepal, Professor Avi Shivedi, Professor Krishna Chandra Sharma, and they all are retired professor of Tirupati University, Kathmandu, that is a central university. And professionally, I am myself an assistant professor at the Department of English from Tirupati University, and now a research scholar at Banaras University. So in a poem, and as I showed that there was a presence of professors of encyclopedic knowledges, and they also uttered their show what is called
pivotal views on that topic, and that also encompasses my own areas. That is literature. There is a poem, Corona Sits, because many men of letters talked of Corona, COVID-19, and we have already experienced this pandemic, painful experiences, and when we remember it, it shudders our heart. That painful pandemic, Corona-19. In a poem, Corona Sits, composed by Vishnu Eswarai, he says that, stop crying, in the first stanza, stop crying, oh man, stop cursing me, and listen, I didn't come here, of my own free will, I was invited. Believe me, I had no choice but to visit you. Because that time, many persons used to abuse it. Because it was very much what is called painful and heart-rending. Again he says that, don't blame me. I just wanted to show you how clear the blue sky looks without dust and smoke. I wanted you to realize how caged animals feel. See the word caged animals. Because on the tune of time, we come to learn many words. So these caged words, that is sanitizer, social distancing, that was the words. In the zoo, not to give you a taste, I came so that Mother Earth could have a little rest. So, in this poem, I see the voice of unity in diversity. Because it is the human beings that are creating finance, that are creating many sorts of problems to this environmental degradation. So, in this poem, he urges for unity in diversity to conserve nature. And there are other poets from India, Nissim Skill. He has in his poem Patriotism. So thank you. I stop my lecture over here. Thank you so much. सभी सम्मानित अतिथिगणों को, संयोजक महोदय और सभी यहाँ पर उपस्थित अकादमिशियंस को मेरा नमस्कार। एक्चुअल में मेरा पेपर तो बहुत लंबा है, लेकिन एज इट इज समय का अभाव है और टॉपिक है हमारा वैश्विक साझेदारी, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए सहयोगात्मक पहल। तो भारत का जो इतिहास है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इतिहास है तो मैंने इसको इतिहास से जोड़ने का प्रयास किया है। जो विश्व की सबसे आरंभिक सभ्यताएं थी, जिसमें सिंधु सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, सुमेरिया बेबीलोनिया की सभ्यता, तो उस समय से हम देखते हैं भारत के जो व्यापारिक और वाणिज्यिक संबंध रहे। हालांकि जो वैश्विक साझेदारी है उसके कई आयाम हैं। एक सांस्कृतिक आयाम है, एक आर्थिक आयाम है, राजनीतिक आयाम है, तकनीकी आयाम है। बट चूंकि इतिहास बहुत लंबा है तो मैंने सिर्फ एक आयाम को जोड़ने का प्रयास किया है कि आर्थिक भागीदारी में हम सिर्फ भारत के व्यापार और वाणिज्य को हाईलाइट करें। तो भारत का जो व्यापार वाणिज्य सिंधु काल से चलता आ रहा है। सिंधु सभ्यता में हमारा मिस्र के साथ, अरब देशों के साथ व्यापार होता था, अफगानिस्तान, ईरान, और आंतरिक व्यापार भी हमारा बहुत सुदृढ़ था। उसके बाद हम अगर बात करें तो थोड़ा सा वैदिक काल में इसमें गिरावट आई, क्योंकि जो आर्यंस थे वो ग्रामीण परंपरा को अपनाते थे और उनका जो है मुख्य पेशा पशुपालन और कृषि था, ना कि व्यापार। लेकिन जैसे ही भारत में द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत होती है 600 ईसा पूर्व, जिसको हम महाजनपद काल के नाम से जानते हैं, जो कि भगवान बुद्ध का भी समय था, तो उस टाइम पे हम फिर से प्रगति देखते हैं। प्रगति किस चीज की होती है? शिल्पों की, व्यापार वाणिज्य की, कृषि उत्पादन की। और इसका प्रमाण है कि उस समय समाज में श्रेणियां होती थी और निगम होते थे। श्रेणियों का मतलब एक तरह का काम करने वाले लोग एक श्रेणी में संगठित होते थे, और ऐसे ही एक तरीके का व्यापार करने वाले लोग एक निगम में संगठित होते थे। तो यानी हमारा उस समय भी व्यापार वाणिज्य काफी उन्नत था, और न सिर्फ भारत के अंदर
बल्कि विदेशों से भी हमारा व्यापार होता था। मौर्यों के बारे में आप सबको पता ही है, अशोक की जो धम्म नीति है वो सांस्कृतिक नीति थी, जिसने पूरे जो है विश्व को कनेक्ट करने का प्रयास किया। और साथ ही साथ कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें आपने देखा होगा कि अर्थ को कितना महत्व दिया है। अलग अलग विभाग होते थे हर चीज को संचालित करने के लिए, और जो व्यवस्था थी मौर्यों की वो सारी कैसी थी, राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था। उसके बाद हमारे यहाँ पे विदेशी शासक भी आए, ग्रीक्स आए, कुषाण आए। तो कुषाणों के दौरान सबसे बड़ा जो है योगदान ये रहा कि जब कुषाणों ने भारत पर अधिकार कर लिया, खासकर पश्चिमोत्तर भारत और मध्य गंगा घाटी के मैदानों में चले गए, मथुरा, ग्वालियर और आगे आपका बिहार तक पहुंच गए, पटना तक, तो उन्होंने एक ऐसा एम्पायर खड़ा किया कि जिसका जो शासन था न सिर्फ भारत में बल्कि जो सिल्क रूट है, जिसने लगभग 1600 साल तक विश्व व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ईसा पूर्व 200 से 1400 ईस्वी तक विश्व व्यापार में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उस पर कुषाणों का कब्जा था। और वो जो सिल्क रूट था वो आपको चीन और मंगोलिया को पश्चिम एशिया और यूनान से जोड़ता था। तो उस समय भी हमारा व्यापार बहुत उन्नत दशा में है, और इतनी उन्नत दशा में था कि कुषाण काल में जो एक लेखक हुए, हालांकि वो दक्षिण भारत के इतिहास उसकी बात करते हैं, आर्थिक व्यवहार की, कि दक्षिण भारत को इतना सोना चांदी आता था रोम से व्यापार के बदले, जो भारत से वस्तुएं खरीदते थे, कि उसने दुख प्रकट किया है कि इतना सोना चांदी आप बाहर रहे हो सिर्फ अपनी विलासिता की वस्तुएं पूरी करने के लिए भारत से। तो ऐसा हमारा समृद्ध इतिहास रहा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं गुप्त काल तक व्यापार वाणिज्य में कोई ऐसी गिरावट नहीं आई। हाँ, लेकिन गुप्त काल के पतन के बाद चूंकि राजनीतिक विखंडीकरण का दौर था, छोटे छोटे जो है शासक थे, कोई केंद्रीकृत सत्ता का अभाव था, तो व्यापार वाणिज्य में थोड़ी सी गिरावट हुई। लेकिन जैसे ही यहाँ पर तुर्कों ने प्रवेश किया 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी के आरंभ में, हम देखते हैं फिर से जो भारत के व्यापारिक और वाणिज्यिक क्रियाकलाप है काफी तेजी पाते हैं। क्यों? रीजन ये था कि जो तुर्क आए वो अपने साथ बहुत सारे शिल्प लाए, और जैसे बहुत सारी मशीन लाए, चरखा है ना, तकली, धुलना जिसको बोलते हैं, तो उससे वस्त्र जो है हमारा वस्त्र उत्पादन बढ़ गया। दूसरा क्या था, जो तुर्क थे वो शहरी जीवन के आदी थे, तो उन्होंने शहरीकरण को बढ़ावा दिया और विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन उनकी आवश्यकता थी। इसलिए राज्य ने क्या किया, अलग से अपने कारखाने बनाए। तुर्की सुल्तानों ने अपने कारखाने बनाए, जो न सिर्फ सुल्तान की बल्कि अमीरों की जो आवश्यकता होती थी उनका सामान कारखानों में बनता था और वहां से उनकी पूर्ति होती थी। इस काल के काफी लेखक हैं जो हमें बताते हैं कि भारत का जो वैश्विक व्यापार है वो एशिया के साथ, चीन के साथ, पूर्व में भी चलता था, मलाया द्वीप समूह, इधर आपका अफ्रीका के साथ भी व्यापार वाणिज्य था। इसी समय में सल्तनत काल के दौर में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य दक्षिण भारत के, उनका इतना उन्नत व्यापार था जिसका जो विवरण देते देते थक नहीं रहे। आपके नूनिज हो जो पुर्तगाली लेखक है, पायस हो, बारबोसा हो, और भी रूसी यात्री निकितिन है, अब्दुल रज्जाक थे फारसी यात्री, इतने सारे प्रमाण उपलब्ध हैं कि कहने का तात्पर्य यह है कि इस दौरान भी हमारा जो है व्यापार और वाणिज्य बहुत अच्छा था। इसी प्रकार मुगल काल में भी हमारा व्यापार वाणिज्य बहुत अच्छा था। समय का अभाव है, नहीं तो मैं बहुत सारे डिटेल देता। थोड़ी सी गिरावट इसमें तब आई जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर अपना राज्य कायम कर लिया और भारत के संसाधनों से ही, भारत से जो मुनाफा अर्जित कर रहे थे वो उसी अर्जित मुनाफे से भारत से सामान खरीद के ब्रिटेन को भेजने लगे। तो इससे धन निकास की शुरुआत हुई, और जब वो लोग भारत को छोड़कर गए 1947 में, तो सबको पता है जो भारत की अर्थव्यवस्था विश्व पहली शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, और मुगल काल में जो अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की सकल जो अर्थव्यवस्था थी उसका 24% थी, वो आजादी की पूर्व संध्या पर मात्र 3.8% थी विश्व की कुल जीडीपी का। यानी अगर मुगल काल में पूरे विश्व के पास 100 रुपए थे तो भारत का हिस्सा उसमें 24 रुपए था, और जब भारत आजाद हुआ तो कितना रह गया, 100 रुपए में से 3 रुपए 80 पैसे,
लेकिन उसके बाद हमने जो है काफ़ी तरक्की की है और बहुत लंबा दौर रहा है आर्थिक नियोजन का, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। बट खुशी की बात यह है कि 1991 के जो एलपीजी रिफॉर्म्स हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद इंडिया हमारा बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। और जैसा कि सर ने बताया था, 2007 में हमारी 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी और आज की डेट में हमारी इकोनॉमी 3.8 ट्रिलियन की है। तो इतने कम समय में हमने इतनी बड़ी छलांग लगाई है। और दूसरी चीज, सबसे जो गौर करने वाली बात है, आज भी हमारा वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान लगभग 8% है एक आंकड़े के हिसाब से, जबकि हमारे पास कितना क्षेत्रफल है दुनिया का, ओनली 2.4%, और हमारे पास पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। उसके बावजूद भी हम ग्लोबल इकोनॉमी में इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि एक रिपोर्ट बताती है कि पिछले कुछ समय में जो विश्व का विकास हुआ है, विकास की वृद्धि दर 35% रही है पूरे विश्व की सारे देशों को मिला के, जिसमें इंडिया का योगदान कितना है आपको जान के अचंभा होगा, 9% लगभग। यानी पूरे विश्व के विकास का चौथाई हिस्सा कौन दे रहा है? भारत। तो ये हमारे लिए फख्र की बात होनी चाहिए। डाटा बहुत सारे हैं, मैंने काफी प्रयास किया था। एक और डाटा है कि आज जो है वैश्विक विकास की वृद्धि दर में हमारा हिस्सा 16% है, दूसरे आंकड़े के अनुसार। जो एशिया पैसिफिक के वो है निदेशक के श्रीनिवासन, IMF एक संस्था है, आप जानते होंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसका एक एशिया प्रशांत क्षेत्र का एक रीजनल ऑफिस है, उसके जो निदेशक है के श्रीनिवासन, उन्होंने बताया है कि हमारी जो अभी वैश्विक उसमें विकास में भागीदारी 16% है, जो 2-3 सालों में 18% हो जाएगी। और जैसे आपने बताया, बैंक ऑफ अमेरिका ने कहा है कि 2027 तक हमारी जो इकोनॉमी है वो कितनी होगी? 5 ट्रिलियन, और 2047 तक हमें विश्व की सबसे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है। एक चीज और मैं बता दूं, हम अभी भी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन कैसे? नॉमिनल जीडी के आधार पर नहीं, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर हम आज भी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी ग्लोबल इकोनॉमी है। धन्यवाद सर, समय का अभाव है। सर अपना नाम तो बताइए। वो आप आ जाओ। सभी 2 एकेडमिक सेशन चलेंगे, सभी लोग जो भी प्रेजेंट कर सकते हैं वो प्रेजेंट करेंगे, 2 एकेडमिक सेशन चलेंगे। हेलो, पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम अमित कुमार मिश्रा है। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में PhD स्टूडेंट हूँ, रिसर्च स्कॉलर हूँ, और मैं नेपाल से हूँ। मेरा आज का टॉपिक है टूरिज्म डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्सप्लोरिंग जनकपुर एंड अयोध्या रिलेशनशिप। हम सब जानते हैं कि टूरिज्म वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, और ये वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल बताती है कि एवरी 5 टूरिस्ट्स visiting any place can generate 1 employment opportunities. So we can understand that how much this industry is important for any country for their economic growth. Fine. So इसके बाद मैं जनकपुर और अयोध्या के रिलेशनशिप पे थोड़ा बोलना चाहूँगा। अयोध्या में अभी राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा रिलीजियस टूरिज्म के हिसाब से बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। नेपाल नेबरिंग कंट्री है और इंडिया और नेपाल का बहुत एक मतलब यूनिक रिलेशनशिप है, जिसमें कल्चरल सिमिलरिटीज, रिलीजियस सिमिलरिटीज, मोर देन 80% पीपल जो नेपाल के हैं वो हिंदू है, हिंदुज्म फॉलो करते हैं, और ऐसे ही मोर देन 70% पीपल जो इंडिया के हैं वो भी हिंदुज्म फॉलो करते हैं। और जनकपुर जैसे ही श्री राम का जन्म स्थल है, तो उनका जो विवाह हुआ था माता सीता से, वो मिथिला, एंशिएंट मिथिला के राजकुमारी थे, जिसका मतलब कैपिटल सिटी जनकपुर था, जो अभी नेपाल में है। तो नेपाल में भी सीता माता का मंदिर है। अगर जैसे कि गवर्नमेंट का एक प्लानिंग भी है राम सर्किट से जोड़ने का, अगर नेपाल इंडियन जो 70% हिंदू पीपल है उनको अगर अट्रैक्ट कर पाए टूरिज्म के हिसाब से, ऐसे ही इंडिया अगर 80% हिंदू पीपल जो नेपाल के हैं उनको अगर टूरिज्म के हिसाब से अगर
अट्रैक्ट कर पाए, तो दोनों कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इससे बहुत बड़ा हेल्प होगा। सबसे बड़ी बात है स्ट्रेंथ क्या है, तो कल्चरल और रिलीजियस सिमिलरिटीज है दोनों कंट्री के बीच में। दूसरी बात इजी मूवमेंट है, विदाउट एनी वीजा, विदाउट एनी फॉर्मेलिटीज नेपालीज पीपल इंडिया में आ सकते हैं, इंटर कर सकते हैं, ऐसे ही इंडियन भी नेपाल में विदाउट एनी वीजा, सिंपल एक आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होता है, वो नेपाल भी इंटर कर सकते हैं और कहीं भी विजिट कर सकते हैं। ये स्ट्रेंथ है। और वीकनेस क्या है कि लैक ऑफ प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन लिंक है ना, जैसे कि नेपाल से अगर इंडिया आना पड़ता है तो प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है, ट्रेन की कनेक्टिविटी नहीं है, ये एक सबसे बड़ी वीकनेस है। और दूसरी बात जो रिसर्च में आया है, जैसे कि नेपालीज पीपल विदाउट वीजा प्रोविजन है यहाँ आने का इंडिया में, बट उनको ना यहाँ पे क्या है कि अगर कोई सिम कार्ड लेना चाहे तो फॉरेनर है नेपालीज, तो उनको अगर सिम कार्ड लेना है तो वीजा चाहिए। स्पेशल नेपाल के केस में चूंकि वीजा की जरूरत नहीं है, तो नेपाल के केस में इंडिया में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि उनको मैं यहाँ पर सिम कार्ड मिल पाए, ये बहुत बड़ी वीकनेस है। इतना कहते हुए मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। धन्यवाद। नेपाल में अगर कोई भी इंडियन जाते हैं तो सिंपल आधार कार्ड अगर देंगे आप तो आपको सिम कार्ड मिल जाएगी, है ना। बट इंडियन नेपालीज अगर इंडिया में आते हैं तो इंडिया का ये पॉलिसी है कि हर एक फॉरेनर को देना है सिम कार्ड, लेकिन आपके पास पासपोर्ट और वीजा होना चाहिए। नेपालीज के केस में वीजा नहीं लगता, पासपोर्ट तो रहता है हम लोग के पास, बट वीजा नहीं रहता है, इसलिए हमें कोई नहीं देते, है ना। तो अपने रिलेटिव से, अब यूनिक रिलेशन है, शादी विवाह सब बेटी रोटी का संबंध है, तो रिलेटिव से अरेंज तो करते हैं, लेकिन ये प्रॉपर ना इश्यू का सोल्यूशन नहीं हुआ, है ना, एक प्रॉपर प्रोविजन होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। भारत की विशेषता वैसे भी हम भर्तियां जब होती हैं या तो भारत का नागरिक हो या नेपाल का नागरिक हो, तो संबंध तो पुराना है जी, बहुत पुराना। साझेदारी की तो बात ही अलग है, संबंध बहुत पुराना है। इसमें डेफिनेटली यहाँ पर जो आर्मी है, एयरफोर्स है, वो उसमें लिखा ही रहता है कि भारत का नागरिक हो अथवा नेपाल का नागरिक हो, तो नेपाल इज फर्स्ट इन इंडिया। लेकिन सर ऐसा कोई प्रॉपर मतलब गाइडलाइन ना गवर्नमेंट की ओर से नहीं है। जो सिम कार्ड प्रोवाइडर है, जैसे कि जो भी कंपनी हो गया BSNL, जियो, उनको इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आप मतलब पासपोर्ट या सिटीजनशिप प्रूफ अगर नेपालीज के कंडीशन में केस में आप लेकर उनको सिम कार्ड इश्यू करिए, ये कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है, हमें नहीं मिलता। जैसे कि मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर हूँ, मैं अपना पासपोर्ट लेकर गया, इवन स्टूडेंट जो मेरा आइडेंटिटी कार्ड है वो भी लेकर गया, मुझे नहीं मिला वहाँ पे, तो मैं अपने रिलेटिव से अरेंज करा, मेरा तो प्रॉब्लम खत्म हो गया। लेकिन इन जनरल तो ये प्रॉब्लम तो अभी है ना, तो ये बहुत बड़ा एक इश्यू है। थैंक यू वेरी मच। A very good afternoon to one and all, respected teachers. Today I, Bhumika Sati, a research scholar under the guidance of Dr. Madan Mohan Varshney, going to present my research paper on the topic, the impact of e-finance and digital transformation on global partnership. First of all, I would like to introduce what is e-finance and digitalization. E-finance is a provision for financial services which helps in using online application like UPI. As we all know that in the today's world, the GPay UPI system is moreover famous as it provides an affordable and clean energy. अभी एक G20 समारोह हुआ था, उसमें जो दिल्ली में हुआ था, उसमें हमारा थीम था द वर्ल्ड इज वन फैमिली विच इज कॉल्ड वासुदेव कुटुंबकम। इसमें बताया गया था जो हमारा संसार है वो एक फैमिली की तरह है, और हमारा जो SDG गोल 7 है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, उसके बारे में बताया गया था। मेरा जो टॉपिक ई फाइनेंस है वो हमें बताएगा कि कैसे हम ई फाइनेंस को यूज़ करके क्लीन और अफोर्डेबल एनर्जी का सोर्स बना सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं आजकल हम जो भी पेमेंट्स कर रहे हैं वो गूगल पे के थ्रू कर लेते हैं। अगर हम ऑन द अदर हैंड जैसे हम देखें कोविड-19 में भी हमें जो ये ई पेमेंट्स टूल्स है इन्होंने बहुत हेल्प किया। जैसे हम जानते हैं कि हम बाहर नहीं जा सकते, तो ई टूल्स थे उनसे, जैसे गूगल पे, फोन पे, ये पेटीएम, इन सारे डिवाइसेस ने हमें हेल्प करी कि हम कैसे पेमेंट कर सकें।
उसकी वजह से हमारा कोविड भी रिड्यूस हो पाया। तो ऐसे ही बहुत सारे टूल्स हैं। मेरे इस रिसर्च पेपर के 2 ऑब्जेक्टिव थे कि मैं ई फाइनेंस का रिलेशन बता सकूं इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से, और हमारे जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी प्रोसेस को समझा सकूं। समय के अभाव से मैं कुछ थोड़े से तो बोल दो थोड़ा। The present scenario. I would like to focus on the topic present scenario. The very first point of the present scenario of e-finance is the UPI Chalega campaign. We have listened about the UPI Chalega campaign, which was started in 2020 by NPCI, which provide UPI a simple and secure payment method. The second scenario was launched in 2022, the UPI transaction volume, which provides 7,400 crore digital payment of 126 lakh crore in 2022. Third point, the 2022 Indian ranked first for the real-time payment with 89.5 billion transactions. Now, the India stands globally first with 89.5 billion transactions. The graph shows ahead is about 74 million transactions of 39 millions. Next. By 2025, e-finance uses could increase by 3.7 trillion annually, and around 490 million new bank accounts are opened in India with the assistance of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. Digital finance is expected to generate $950 billion in GDP. Coming towards the prospects of e-finance and digital transformation. As we all know, every topic has some pros and cons. The pros of the topic is enhancement of customer experience, e-finance and digital transformation, increased consumer experience and increased operating efficiency with less human errors. Digital connectivity during COVID also helped the peoples to do transaction through internets. Quick adoption of new technology was seen and more secure and regulated transactions were recorded. Some of the constant of my research is the cyber security problem. As we all know, while doing any of the things, जैसे हम कोई भी पेमेंट करते हैं तो सबसे पहले हमें टेंशन होती है हमारा पैसा गया नहीं गया, बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, प्राइवेसी कंसर्न्स होते हैं, हम अपना डाटा प्रोवाइड करते हैं लेकिन हमें डर होता है कि हमारी ये चोरी ना हो जाए डाटा की। सेकेंड पॉइंट है एक्सेसिबिलिटी, इंक्लूजन, एंड द थर्ड पॉइंट इज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो इस टॉपिक पे नहीं बन पाई हैं, रूल्स और रेगुलेशन प्रॉपर नहीं है। और एक तो डाइवर्स कल्चरल डिफरेंसेस। ऐसा हम जानते हैं कि इंडिया डाइवर्सिटी से भरा हुआ है, हर तरीके के लोग हैं यहाँ पे, रिच पुअर पूरा मिडिल क्लास सारे सेक्शंस है। जो अभी भी पिछड़ा शहर है या कह सकते हैं पुअर कंट्रीज है, वो अभी भी डिजिटली फाइनेंस नहीं कर पा रही है, हम ई फाइनेंस को नहीं अपना पा रहे हैं। रीजन ये है कि कनेक्टिविटी नहीं है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड हो पा रहा है जिससे हम ई पेमेंट को कर सके। लास्ट है डिस्पैरिटीज इन डिजिटल लिटरेसी। जैसे हम जानते हैं लिटरेसी तो सबको पता है, आज के टाइम पे 12th हर कोई कर लेता है, लेकिन अभी भी वो साक्षरता नहीं है कि वो इंटरनेट को यूज कर सके। मैं एक कॉलेज में पढ़ाती हूँ तो उसमें भी मैंने देखा कि बच्चे अभी भी डिजिटली नहीं कर पा रहे, उन्हें पता है कि क्या होता है इंटरनेट, लेकिन वो कंप्यूटर को जानते नहीं कैसे चलाना चाहिए। Some steps are there to reduce these constraints. The first is digital literacy programs। जैसे हम जानते हैं प्रधानमंत्री जी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स बना रहे हैं जिससे हम डिजिटल लिटरेसी को इंक्रीज कर सके, जैसे डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री जन धन योजना जिसके अंदर हमने बैंक अकाउंट्स खोले। आज 90% इंडियंस जो हैं उनके पास बैंक अकाउंट्स हैं और अपनी पेमेंट्स वो कर सकते हैं। Second one is cyber security measure. If we make some measures to reduce the security problems like data privacy and all these,
And the third one is infrastructure development. The proper infrastructure development for electronic things should be done. A proper regulatory framework should be made, and global collaboration can help this. Coming towards conclusion, the effect of digital transformation and e-finance on international relationship were examined in this study. The result demonstrates crucial role these technology developers play a promoting cooperation, optimizing financial procedures, and improving connectivity worldwide. Global collaboration is changing quick as a result of champion financial institution continued adoption of digital tools and innovations. The global partnership is constantly changing because of e-finance and digital innovations, which promotes more cooperative, effective, and flexibility. There is tremendous opportunity for greater study and useful application, as there is a deal of room for additional study and useful applications. Thank you, sir. भूमिका की जैसे आपने कहा कि बहुत लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और अभी आप कितना परसेंट ट्रांजैक्शन ऑनलाइन कर रही हैं? 100% कर रही है ना। अब आपको जो है एटीएम पर और बैंक में लाइन की जरूरत नहीं है। आपसे 1 साल पहले की बात बता दूं मैं आपको कि जब हम पैसे निकालने के लिए भी एटीएम पे जाते थे तब भी लाइन में लगती और बैंकों में इतनी भीड़ होती थी। तो इसका जहां तक बेनिफिट हुआ है वो बैंकों को भी हुआ है, जनता को भी हुआ है। धीरे धीरे हमसे ज्यादा हाई फाई है जनरेशन, अभी बहुत जल्दी करती है। और हमारा जो ओल्ड स्टेज है, अभी भी हमारे प्रोफेसर हैं, हमारे सीनियर्स हैं, वो लोग नहीं कर पाते, उनके बच्चे सब कुछ करते हैं। पीढ़ी के लिए ये नॉर्मल बात है कि वो हमेशा पेटीएम पैसे कहीं भी वो 2 रुपए पे देने हो तो मेरी भीम ऐप हुआ, यूपीआई हुआ, पेटीएम हुआ, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो उनके सब बच्चे कर रहे हैं। एक अलग बात है कि फैसिलिटी थोड़ा सा दूर दराज के ग्रामीण अंचल में थोड़ा कम हो सकती है। आजकल तो बहुत सारे टावर भी लग गए, तो दूर दूर तक 5G 4G चल रहा है, ये अच्छा है। प्रोग्राम्स कंडक्ट कराए जा सकते हैं। हाँ हाँ, ये बात आपकी सही है, लेकिन हमें तो लग रहा है कि हमसे ज्यादा आगे है हमारी न्यू जनरेशन। थैंक यू। सम्मानित मंच और मेरे सम्मानित प्राध्यापक और मेरे शोध पर्यवेक्षक श्री डॉक्टर मदन मोहन वार्ष्णेय, करस्पॉन्डिंग ऑथर, असिस्टेंट प्रोफेसर एचओडी ऑफ कॉमर्स, डीआरए गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, बिसौली, बदायूं। माय नेम इज विकास बाबू, आई एम ए रिसर्च स्कॉलर। टुडे माय टॉपिक conversion of public undertaking into privatization, fair or unfair for the Indian economy and analysis, सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण में परिवर्तन, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उचित या अनुचित। अब तक जो देखा गया है, प्राय प्रत्येक देश अपने देश की आर्थिक समृद्धि चाहता है। प्रत्येक देश अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए जहां भारत देश आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद देश की हालत ज्यादा सही नहीं थी, तो 1951 में सार्वजनिक उपक्रमों पर ज्यादा जोर दिया गया था। 1951 में 5 सार्वजनिक उपक्रम थे जिनका कुल निवेश 29 करोड़ रुपए था। लेकिन धीरे धीरे सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना हुई, बढ़ते गए। 1965, 71 क्राइसिस आई, युद्ध हुए थे, उनमें सरकार की हालत और ज्यादा खराब हो गई। तो भारतीय स्थिति ज्यादा खराब होने के कारण पहले LQP थी, यानी लाइसेंस क्वेटा परमिट, उसकी जगह फिर सन 1991 में LPG मॉडल को लाया गया आर्थिक खतरों से निपटने के लिए। और यह भी कहा गया था, PV नरसिम्हा राव अस्थायी प्रधानमंत्री बनाए गए थे राजीव गांधी के हत्याकांड के बाद। तो वहां पर निश्चय ये हुआ था कि हमें ऐसे वित्त मंत्री की जरूरत है जिसका राजनीति से कोई लेना देना ना हो। तो उन्हें वहां पर देखने के लिए उन्होंने सर्च किया, तो फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत की नैया पार लगाने के लिए वित्त मंत्री का पद दिया गया और उन्होंने वहां से LPG पॉलिसी को लिया। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और प्रिवाटाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो निजीकरण, जहां निजीकरण तक की बात है, मैं उससे पहले
जैसे कि पूर्व के वक्ताओं ने कहा भी था, निजीकरण से पहले सबसे पहली चीज है शिक्षा सामाजिक न्याय का साधन होने के साथ साथ आर्थिक विकास का मूलभूत चालक भी है। ये केविन रूल ने कहा है। इनका मानना है कि भारत जैसे देश में जो धीरे धीरे करके शिक्षा व्यवस्था और चिकित्सा व्यवस्था सबसे ज्यादा महंगी हो रही है, शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था के कारण ही जो आर्थिक और सामाजिक विकास है उसमें जो गैप आया है वो सबसे महत्वपूर्ण कारक है। हम लोग जहां भी बात करते हैं वो आर्थिक और सामाजिक विकास की बात करते हैं, लेकिन आर्थिक सामाजिक अगर हम देखें आज के नजरिए से तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों में इनवर्स रिलेशन है, लेकिन हम चलते पैरेलल रिलेशन के लिए है। क्योंकि जहां आर्थिक है वहां सामाजिक नहीं, जहां सामाजिक है वहां आर्थिक नहीं। जैसे कि हम अभी मेडिकल चिकित्सा की बात करें, सरकारी हॉस्पिटल में जाए 1 रुपये में पर्चा बन जाता है। अब निजी चिकित्सालय में जाए तो वो हाथ पकड़ने के 500 रुपये ले लेता है। उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन है। जो व्यक्ति 50 लाख रुपए खर्च करके एमबीबीएस की डिग्री लाएगा तो वो चिकित्सक नहीं व्यापारी बनेगा। पहली चीज तो ये है निजीकरण का दोष। हम यहाँ पर आर्थिक सामाजिक दोनों को पैरेलल लेके चल रहे हैं, जबकि इनमें बहुत ज्यादा विपरीत डिफरेंस है। आर्थिक विकास अकेले किसी देश को आगे नहीं ले जा सकता। हमें एक ऐसे समाज और अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है जो एक दूसरे के पूरक है। हमें गरीबों, वंचितों और समाज के पीछे छूटे हुए वर्गों का ध्यान रखने की भी जरूरत है। यहाँ पर बात आती है आर्थिक वृद्धि की। आर्थिक वृद्धि को 2 तरीके से लिया गया है। जिस देश की जीडीपी और पर कैपिटा इनकम बढ़े तो देश आर्थिक वृद्धि कर रहा है, लेकिन कुछ आर्थिक इतिहासकारों ने कहा है कि जिस देश के लोगों का जीवन स्तर अच्छा होगा उस देश की आर्थिक वृद्धि अच्छी मानी जाएगी। यानी कहने का मतलब है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आ रही है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आ रही है। वो मेन कारण भारत की अर्थव्यवस्था में, जैसे हम 5 ट्रिलियन का नजारा देख रहे हैं, 8 ट्रिलियन का और आगे 10 ट्रिलियन का भी देख रहे हैं, हम बढ़ भी रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर आर्थिक असमानताएं बहुत आ रही हैं। आर्थिक असमानताएं बहुत आ रही है, वो प्राय देखने को मिल रही है। उसके कारण ये है सरकारी घोटाले तो सार्वजनिक उपक्रम हो या निजीकरण हो, दोनों ही बराबर घोटाले चल रहे हैं। जिसका जैसे मन होता है वहां से वो घोटाला करके निकल जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एक वाणिज्य इकाई है, कंपनी संबंधित है जिनका पूरा मेन मोटिव था देश के जो नागरिक हैं उनको सस्ती वस्तुएं उपलब्ध कराना और देश को आर्थिक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना, जिससे कि वो सभी लोग एक पैरेलल पर आ जाएं। लेकिन वहां पर भी भ्रष्टाचार, बढ़ती आय असमानता, भाई भतीजावाद, विभिन्न प्रकार की चीजें आई जिसकी वजह से सरकार को निजीकरण की ओर मुंह करना पड़ा। यानी बढ़ते राजकोषीय घाटा, भुगतान असंतुलन, विदेशी मुद्रा का भंडार कम होना और अहित कल्याणकारी योजनाएं। भारत के अंदर जैसे देखा गया है कि फ्री की योजनाएं शुरू से ही चल रही है। यूपीए सरकार से किसानों का ऋण माफ करना, किसानों का ऋण माफ करने का मतलब ऋण माफ तो कर दिया आपने, ऋण माफ की जगह में एक आध कोई ऐसी स्कीम भी ला सकते हैं कि जिससे थोड़ा वो ऋण दे भी दे और थोड़ा सा उन पर माफ भी कर दिया जाए। यानी उनके अंदर ये एक टेंडेंसी ना आ जाए कि हम लोग बिल्कुल चुपचाप बैठ जाए। अगर जैसे मान लीजिए पिछली सरकारों में माफ किया है लोन, तो व्यक्ति की नजरिए क्या हो गया कि सरकार लोन, अगली सरकार आएगी वो लोन माफ कर देगी, लेकिन उसका घाटा किसमें पड़ेगा? सरकार पर ही पड़ेगा। तो इन विभिन्न क्षेत्रों से निकलने के लिए निजीकरण की ओर मुंह करना पड़ा। लेकिन निजीकरण एक तरीके से तो अच्छा भी है और एक तरफ से उसके दोष भी हैं। अच्छा किस लिए है? अच्छा इसलिए व्यक्ति की कार्यकुशलता बढ़ रही है, व्यक्ति कार्य के प्रति यानी कह सकते हैं अपने वर्क एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है। धीरे धीरे करके सार्वजनिक उपकरणों, निजी उपकरणों को देखते हुए सार्वजनिक उपकरणों ने भी अपने आप को बहुत चेंज किया है। जैसे हमारा कॉलेज, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा सरकारी कॉलेजों का काफी ज्यादा गिरा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन हुआ उसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नए मॉडल आ रहे हैं, नए तरीके से आ रहे हैं। कारण क्या है कि जब लोग निजीकरण और प्राइवेट, निजीकरण और सार्वजनिकरण, निजीकरण का मेन मकसद ये था कि सरकार अपने कह सकते हैं अपनी कमाई को निजी हाथों में भेजना। और इसका एक दोष और भी आ रहा है सामने कि कुछ लोगों के हाथों में ही निजीकरण को सौंपना, कुछ लोगों के हाथों में ही। जैसे मान लीजिए जियो है, आप लोग सभी देख रहे हैं, पूरी तरीके से मोनोपोली है। पहले फ्री में बांटा, आदत डाली,
अब आपसे 4G से 5G के रिचार्ज लेना शुरू हो गया। ये स्कीम ऐसा नहीं, इससे पहले कोको कोला कंपनी है, वो भी इस स्कीम का फायदा उठा चुकी। पहले उसने लोगों को फ्री में कोको कोला बांटी, बाद में वो पैसे वसूलना शुरू कर दिए। तो निजीकरण को देखते देखते सार्वजनिक क्षेत्रों में सुधार आया है, लेकिन भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, ये जैसे गंभीर समस्याएं यहाँ पर अभी भी व्याप्त है। भारत में पहले 17 उपक्रम से घटाकर 8 कर दिए गए, 8 से 6 कर दिए गए। अब 3 सरकारी उपक्रम है, सेंट्रल और प्राइवेट सेक्टर बैंक, वो पब्लिक सेक्टर बैंक और स्टेट एसपीसी, स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, 3 भागों में बटे हुए हैं। इसमें नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्न 3 प्रकार की कंपनियां सरकार जो अच्छे परफॉर्मेंस करती आ रही हैं। 3 रिजर्व है। हाँ 3 रिजर्व है भाई, स्पेस, डिफेंस एंड रेलवे। हाँ वो डिफेंस है और डिफेंस रेलवे, बस रेलवे का भी धीरे धीरे करके निजीकरण हो रहा है। रेलवे का भी हाँ हो रहा है, रेलवे भी चल रहा है। सॉरी एटॉमिक एनर्जी एंड वो क्या बोलते हैं विस्फोट चला। हाँ विस्फोट डिफेंस उसमें आएगा और एटम वाले में। अब बात करते हैं विनिवेश की। विनिवेश के द्वारा सरकार ने सोचा था कि ऐसा करें कि क्यों ना हम पूर्ण निजीकरण को इनके हाथों में ना देके कुछ पार्ट अपने पास में रखें और कुछ इन्हें दे दिया जाए। लेकिन देखते हमें प्राइवेट से था, लेकिन अभी भी हम डिसइन्वेस्टमेंट के पूरे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। 1991 से 99 तक विनिवेश लक्ष्य 34,300 करोड़ रुपए के लक्ष्य के रूप में था, जिसमें से हमने 16,809 रुपए का 16,809 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त कर पाए। और 2022-23 में विनिवेश लक्ष्य था 31,106 करोड़ रुपए, लेकिन उसमें से भी अभी तक 20,500 करोड़ का ही विनिवेश लक्ष्य प्राप्त कर पाए हैं। ठीक है, मैं कह रहा था कि ये भाई भतीजा बात कैसे खत्म हो सकता है सर? अब मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको रेलवे का चीफ बना दिया जाए तो आप सोचेंगे कि मेरा भाई भी छोटा लग जाए? सर मैं उसके पीछे एक तर्क बता रहा हूँ, कारण क्या। जो परंपरा डाली है वो हम लोगों ने ही डाली है, उसमें दोषी भी हम ही हैं। ठीक है, आरक्षण एक तरफ गलत भी है और आरक्षण एक तरफ सही भी है। आरक्षण गलत क्यों है? क्योंकि वो एक देखिए है। बात समझ में आई ना? आपकी बात को समझ रहा हूँ, प्लीज। हाँ आरक्षण को अलग हटा कर। हाँ मैं उसी में जोड़ रहा हूँ। भाई भतीजा बात आरक्षण में नहीं आता। नहीं मैं उसी में कर रहा हूँ। मैं सर कारण क्या है, भाई भतीजा बात कभी खत्म नहीं हो सकता। और एक चीज मैं बताऊं, जो सरकार का जो सरकारी मंत्री है और जो आज पेपर लीक हो रहे हैं, ये भाई भतीजा बात में सबसे बड़ा प्रमुख कारण है। क्वेश्चन ये है भाई भतीजा बात कैसे खत्म हो सकता है? कुछ चीजें नहीं खत्म होती, एक ऑप्टिमम लेवल पे हर चीज को छोड़ा जाता है। समथिंग इज परमिसिबल एंड समथिंग इज नॉट परमिसिबल। दिस इज द आंसर, प्लीज। थैंक यू। बस हो गया सर। ओके, इस टेक्निकल सेशन के समापन में मैं सबसे ज़्यादा आभार प्रोफेसर डॉक्टर प्रवेश कुमार जी का और प्रोफेसर डॉक्टर सीमा तेवतिया जी का, जिन्होंने अपना बड़ा अमूल समय इस सत्र को संपन्न कराने के लिए दिया। हृदय तल से आभार, बधाइयाँ, तालियों से इनका जोरदार स्वागत करेंगे। निश्चित रूप से ये एकेडमिक सत्र अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा है। आंतरिक खुशी का अनुभव मुझे हो रहा है। जितने भी पार्टिसिपेंट्स रहे और जितने भी प्रयास हुए, सर्वोत्तम प्रयास किए गए, जिसमें से आज और कल चलने वाले 2 एकेडमिक सेशन के जो बेस्ट परफॉर्मर के लिए सर ने, हमारे प्रिंसिपल सर ने, जो इस नेशनल सेमिनार के समन्वयक भी हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज के लिए घोषणा करने को कहा है। वो भी मार्किंग यहाँ पर हुई है, तो उसके आधार पर चयन भी होगा। निश्चित रूप से बड़ा सफल ये सेशन रहा। सभी का, जितने भी प्रतिभागी ने इसमें प्रतिभाग किया, अपनी
ज्ञान का प्रदर्शन यहाँ किया, निश्चित रूप से पीपीटी के माध्यम से काबिल तारीफ है। कल हमारा एकेडमिक सेशन सुबह 9:30 से 11, एक फर्स्ट टेक्निकल सेशन और सेकंड टेक्निकल सेशन 11:15 से 12:45 तक रहेगा। तो मेरा सभी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं सभी विद्वजनों से अनुरोध है कि जो भी शोधार्थी, डेलीगेट्स या जो एकेडमिशियन शोध प्रस्तुत करना चाहें वो कल अपना शोध प्रस्तुत करने के लिए सहर्ष सादर आमंत्रित है। धन्यवाद आप सभी लोगों का। चलो भी धन्यवाद आप सभी का, और धन्यवाद सबका भी, मैम का भी, जिनके सानिध्य से हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। सबसे ज्यादा धन्यवाद आप लोगों का, क्योंकि आपके बगैर तो ये सेमिनार संभव है ही नहीं है। हम लोग इतना सब लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, इसके बगैर संभव है नहीं। धन्यवाद सर, थैंक यू।